ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਏ ਫੜ ਲੈ ਗਾਇਓ ਪਰਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਕਰ ਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਢੂਈ ਪਾਣਗੇ ਅਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ, ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਈ ਪੜਾਂਗੇ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਹੈ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਚਟਿਆ ਆਪਣੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੰਨੇ ਲਾਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ। کوئی شیئر کرے جی ذرا، کوئی تو اناؤنس کر کے آئے ذرا کہ بھائی ون سائیڈڈ چلائی ہے ٹربو ویگن۔ آؤ ذرا ادھر سن لو نا، یہ خنزیری قادیانیت کا چہرہ ہم دکھا دیتے ہیں۔ جس قادیانی بے غیرت نے اور اس کو قبول کیا، زبردست، جس قادیانی بے غیرت نے قبول کیا بیٹھ کر، جس نے اسلام کے ساتھ یہ بکواس کو قبول کیا اور اپنا لفظ منہ نہیں کھولا چونکہ مسلمانوں کا رگڑا نکالا جا رہا ہے، بغیر تو تمہارا واقعی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذرا بھائیوں کی ریکویسٹ وغیرہ آپ لوگ دیکھیں، ذرا اٹھائے۔ میں ذرا یہ ساتھ آدھی سکرین کی ہوئی ہے، مجھے صحیح شو نہیں ہو رہا، میں ویڈیو بھی پلے کر رہا ہوں۔ عثمان بھائی کو اٹھائے، آگے لے جی، آگے سنیں جی۔ اے دنیا نو نظمہ بنائیاں نے، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، تے اپنا کردار ویکھو بغیرتا تے سن دے جاؤ۔ تو کر لو ریکارڈنگ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਢੂਈ ਪਾਣਗੇ ਅਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ۔ علی اکبر صاحب ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے عقائد رب الورا۔ مرزا صاحب دلان تے چڑھ جانا ہے تو پتہ کی دچو رنڈی جب دل سے تقوی اٹھ جائے تو ایسے غیرت پیدا ہوتے ہیں۔ میرا سوال ہے جی سٹیریل صاحب، کیا یہ خنزیری قادیانیت ہے؟ یار بھائیو آپ کمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ والا سارے سوال پوچھے نیچے یار لکھ کے، اتنی محنت سے ایک جملہ بنا ہے۔ کیا یہ خنزیری قادیانیت ہے؟ یہ آگے سوالیہ نشان ضرور لگائیں، کیا یہ خنزیری قادیانیت ہے؟ ذرا لکھیں اور انجوائے کریں ساتھ۔ ہر قسم کی روحانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، جماعت احمدیہ کی بیماریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اس سے زیادہ صحیح نشاندہی ممکن بھائی مرزا طاہر صاحب کا جیسے ہی آرڈر آیا آپ سب نے مائک کھول کے لالے ڈال لی جی۔ نہیں، اس قوم کے دل سے تقوی اٹھ چکا ہے۔ حضرت عمر نے لتا مار کے حضرت فاطمہ نے شہید کرتا ہے۔ ایڈی گندی قوم یار۔ وہ حضرت فاطمہ نو کنے انصاف دلوانا ہے گا؟ حضرت فاطمہ نو نہیں انصاف دلوانا۔ ندیم پرویز صاحب کڈی منوش شکل ہے، قسم خدا دی ویکھ دی الٹی آ گئی۔ فاطمہ دے پیٹ وچ بچہ سیگا جو امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں۔ لکھ دی لعنت بے غیرتو او بے شرمو اور گندی جماعت کے گندے پیروکارو، تم جس کی بیعت میں ہو اس نے تمہیں بالکل یہی تعلیم دی ہے، تم جا کر اسلام پہ بھونکو اور بکواس کرو۔ تم اتنے بے غیرت لوگ ہو اور آج بیٹھ کر کیسے منہ چڑھا کر آج دیکھو کلین چٹ دے رہے ایک دوسرے کو، کلین چٹ دی جا رہی ہے اور کہا گیا کہ ان کی جوتیوں کے برابر ایسی دی تیسی ہوتا ڈی۔ تم نے مسلمانوں کو جوتی کے برابر کیا؟ ان بے غیرتوں کی اپنے منہ سے اصول پر آج ہیومن رائٹس کی بات کر کے بتاؤ، کیا یہ خنزیری قادیانیت ہے کہ نہیں؟ آپ نے اسلام کے ساتھ یہ والا لفظ جوڑا، اس کا جواب دو، کیا یہ خنزیری قادیانیت ہے کہ نہیں؟ کو دیکھے مسلمان اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے؟ آگے سنو جی۔ ہیں اچھا مرزا صاحب تے الزام لاؤ گندے انہاں دے اوتے الٹیاں سیدھیاں جو کسی احمدی نے کہہ دیتا کہ سارے بھائی ٹیپ کریں ذرا اور شیئر کریں لائیو کو، اور خاص طور پہ کچھ مخصوص بندوں کو شیئر کریں لازمی جی۔ پاک رسول دی وفات ہوئی ہے، یہ کیڑی غلط گل کر دیتی؟ اسی تو مندی نہیں کہ مرزا صاحب دی وفات، اسی تو کہنے ہیں کہ جنی مبارک وفات انہاں دی ہوئی ہے اوویں ہی وفات ہوئی ہے جویں انہاں دے
ਆਕਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾੜੀ ਸੀ ਇਹ यार पूरे पूरे पाते ने बेगैरत के बच्चों की। ठहरो जरा, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ खुदाम कहते हैं हमें, खुदाम कहते हैं हमें, खुदाम। ये है जी खुदाम है, ये खुदाम है। इस कुत्ते को उठा के बाहर फेंका जाए जी, इस कुत्ते को मैं ही फैल के फेंकता हूं, चले बाहर निकल। आप अंदाजा करें, ये है खुदाम जिन्होंने पहले अतफाल में थूक चाटा खलीफे का, फिर ये थूक चाटते चाटते ये खुदाम बन के इन्होंने थूक चाट कर तमाम इस्लाम की जो बरगुजीदा शख्सियात हैं और खासतौर पर मुसलमानों इस्लाम को भौंका, उनको गालियां दी। अब उसके बाद ये अंसारुल्लाह फी हुलुल मसीह मौद बनकर नंगा नाच कर रहे हैं अपनी बेगैरती का। होती हैं वो, आप उसको कहें कि यार 1 घंटे के लिए आना है, 2 घंटे के लिए आना है, और आपने कुछ वेखो जी है इजराए नबूवत दा मुजाहिद, इजराए नबूवत दा मुजाहिद खत्मे नबूवत दे मुजाहिदां दा मुकाबला करन वास्ते किराए दे उत्ते औरतां लियान दा मनसूबा बयान कर रहा है। ते किनू किराए ते लैके आएगा अल्लाह माफ करे, अल्लाह मैं आगे कहना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि खंजीरी कादियानियत दा टैग दिता गया ते ओदे विच कुछ भी तुसीं एक्सपेक्ट कर सकदे। सुनो जी, होती हैं वो, आप उसको कहें कि यार 1 घंटे के लिए आना है, 2 घंटे के लिए आना है, और आपने कुछ हवाले पढ़ने हैं, तो वो लड़की आएगी, आकर वो मटका मटका के घुमा घुमा के फिरा के ना वो जब पढ़ेगी ना ये हवाले 10 या 12 हवाले मैंने उसे पढ़वाने हैं, ये फहुश गंदे और गलीज। उठो, इस नसीब के लिए अपने आप को साफ और रोशन साफ तो करो, पाक तो बनाओ। ये नूर गंदे नापाक दिलों में नहीं उतर सकता। अपने किरदार की क्यों फिक्र नहीं करते? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਠੀਕ। प्लांटेड बंदा सी ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਤੋਂ ਸਰਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਲੀਮ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰਤ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਮਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੀਕਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ। है जिसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं। ये जो है ना अपना मौलाना फजल रहमान हजरत ईसा के बराबर है। आपका कवि जो है मौलवी मुफ्ती कवि वो चक्रीबाज और रहीम शाह दे नाल जो चुम्मी चट्टा करदा हजरत ईसा के बराबर है, हजूर ने फरमाया है। इन सब हाँ जी, क्या ये खंजीरी कादियानियत है कि नहीं? जवाब दें जी जरा सारे भाई, जरा माइक खोले और नीचे पूछे जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है सीकर भाई, 100%। एक और भी चीज है सीकर भाई, कहते हैं कि एक बंदा सी ना कुछ होंदा सी, उन्हें आख्या यार मेरी जेड़ी है ना मुइज़ा ही हो गया। सीकर भाई ये रूहानियत वाला बच्चा पैदा हुआ था हाँ जी, कादियानियत में, यही जी। और अब वो बच्चे जो हैं वो आपके सामने देखें, बच्चों की तालीम चल रही है। और मजे की बात ये है, आज बच्चों को क्लीन चिट दी जा रही है कि बच्चे बड़े नेक ने। अभी मैं आता हूं उस चीज के ऊपर भी, बच्चे बड़े नेक ने और माशाअल्लाह औरतां दी इज्जत करते ने। और नेक जमात दा जड़ा हाफिज है ना, उन्होंने कहता जी कुरान हिफ्ज कीता होया उन्हें, ते आलिम है बहुत बड़ा उन्हां दा। ओदे अल्फाज ने ब्रोकर टोपी पाल ले सीकर भाई ब्रोकर अगर टोपी सर के ऊपर रख ले तो वो नेक हो जाएगा। हाँ मुर्शिद भाई, उसके अल्फाज है अम्मा जी फिक्र ना करो तुहाडी असीं टूई पढ़ांगे, ए ओदे अल्फाज ने। ये अपनी अम्मा जी का नाम लेकर ना किसी को अम्मा जी कह के तो कहते हैं तुहाडी असीं फिक्र ना करो तुहाडी टूई पढ़ांगे। ये मंजी चौक दे विच माँ कह रहा है, ऊपर से क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं। जी 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 लो ये लोगों की अपनी माँ के ऊपर गंदी नजर है। असल में पढ़े लिखे लोग है ना जी, इनकी तरबियत हुई है ना तफाल में, फिर खुदाम में। ये देखे ना उनके खलीफा क्या कह रहे हैं, जरा सुनते जाएं। बलाओं का दर हकीकत तो एक ही इलाज। ले जी, मिर्जा ताहिर साहब का ऑर्डर आ रहा है। दोस्तों आपने यक जुबान होकर इनकी बात को मानना है। देखिए जो अच्छी बात हो उसको मान लेना चाहिए। सुने उनकी बात। नाल जो चुम्मी चट्टा करदा हजरत ईसा के बराबर है, हजूर ने फरमाया है। इन
सब बलाओं का दर हकीकत तो एक ही इलाज है। आप भी सब हर जगह जाके उंगली कर देना। आप भी सब अंबिया को गाली पड़वाते हैं मेरे शपड़ गुल्ले। तेरे में हाँ जी, इधर नाम ले लेकर ये गलीज नस्ल का कीड़ा, ये गंदी जमात अहमदिया का पैरोकार नाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गाली निकालेगा। नाम ले लेकर गंदी गाली निकालेगा। और इधर बैठकर कुछ लोग इस कदर मुंह में शहद लेकर, शहद मुंह में डालकर अपनी जमात का दिफा कर रहे होते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। और हेड है गालीबाजों के, गुस्ताखों को प्रमोट करने वाले, और हेड है लोगों के। काफी दिन से ये चित्र पोला ना आपका ये रुका हुआ था। हम थोड़ा इल्मी साइड पे चले हुए थे। ये चित्र पोला इंशाल्लाह वहीं से शुरू होगा और दुनिया को आपकी औकात बताएंगे कि आपकी औकात असल में है क्या। किस कदर गंदी तालीम है आपकी जमात की, जो लोगों की बेटियों के इश्तिहार छापने से शुरू हुई है और आज लोगों की बहनों बेटियों की बालकनी में बैठे हुए फोटो लेने पे खत्म हुई है। किस कदर आप लोग बेगैरत लोग हो। और आज बैठकर देखो क्या खूबसूरत तरीके से, हमारी जमात की तो ये तालीम नहीं है। हम लोग तो बड़े बहुत ही एक पूरे प्रोसेस के जरिए आए हैं। सुनो जी आगे प्रोसेस। ये गालियां देगा पैगंबरों को, मैं इसको थोड़ा आगे कर रहा हूं। ये पैगंबरों को गालियां निकालेगा ये बेगैरत इंसान जो है अभी। तेरे मोहम्मद दे करा अस्तगफिरुल्लाह दे मोकरा तेरे मोहम्मद दे करा। Said I should ask. Yes, please. That's very dangerous. I should ask you to pray for him so that will come You should true. be a Rabbi or missionary or Walid, but not a Maulvi. एक की फर्क ਉਹ पैदा है ਜਿੱਥੇ 100 ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਪਾਊਗਾ? ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਅਗਰ ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ इन सब बलाओं का दर हकीकत तो एक ही इलाज है। ये सबसे बड़ी बला जो जमात अहमदिया है, सारी कौम इस पर लानत डाले। लानत भाई, जय माने जी, उनकी बात माने उन्होंने, इतनी आपसे गुजारिश की। लख दी लानत डाले मल्टीप्लाई बाय। बिल्कुल। अब आप देखें, मजे की बात देखें। इधर आज पूरी जमात अहमदिया, दोस्तों आज चेहरा देख रहा आपने, आज जमात अहमदिया के लोग बैठकर एक बंदे की तारीफ कर रहे हैं, मुसलमान की। मौका है ना हाथ में, उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं गुलामी की जंजीरें तूने तोड़ दी है, तू खड़ा हो गया है इन दहशतगर्दों के खिलाफ। बगैर तो 1.5 साल से व्हील चेयर पे बैठी एक औरत को तुम लोग मां बहन की गालियां दे रहे हो, तुम उसको फोर्स कर रहे हो, तुम उसको इंटेंगल कर रहे हो, तुम उसको जबरदस्ती, तुम उसकी बालकनी में बैठे फोटोएं बनाते हो, उसके बच्चों को धमकियां उसकी दे रहे हो कि तेरे बच्चों के साथ हम कुछ कर देंगे, तुझे सर में गोली मार देंगे। जब वो बोलती है तो बगैर तो वहां तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। उसे कहते हो अम्मा जी तेरी टूई पाड़ देंगे। लख दी लानत है इन बुढ़े मुनाफिकों में जिनका आज तक मुंह नहीं खुला। वहां तुम्हारा मुंह नहीं खुला कभी। आज उसी और जब ये कह रही है कि मैं तो इनमें भी शामिल थी इनके राज निकलवाने के लिए, कादियानी तो मैंने कब की छोड़ दी। आपने दांत से दांत नहीं उठाया क्योंकि उस टाइम आप मजे ले रहे थे। आपके कोलोफेल में तजाद है, आप खाइन है, बददियानत है आप सरगुना इन गालीबाजों के, और उसके सबूत हम प्रोवाइड आपको कर चुके हुए। इन्हीं बेगैरतों को आपने यंग ब्लड कहा था, जिन्होंने पैगंबरों का नाम ले लेकर मां बहन की गालियां दी। आपने यंग ब्लड कहा था इनको। आगे सुनेंगे। दुआएं करे और गिड़गिड़ाए कि ऐ खुदा हमें इस लानत से निजात बख्श। क्योंकि जब तक ये लानत मुल्क पर सवार है, कभी भी इस मुल्क की कोई, जब तक ये लानत सवार है, इस्लाम का नाम लेकर जिंदगियत करती रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से फसाद बरपा होगा।
और पाकिस्तानी जैसे लोग पाकिस्तान का नाम रखकर अपनी मीठी मीठी जुबान के साथ मुनाफकत करेंगे, दुनिया को धोखा देंगे और दुनिया को यह तासुर देंगे कि वी आर वेरी क्लीन एज, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि सुनो कि मुल्क के लिए कोई निजात की राह नहीं कर सकता। जब बांदरी दिया बच्चा ओए भैन दी तू मुहम्मद दे किरदार ते गल कर। हाँ पाकिस्तानी, जब आप आओ ब्रॉड पर और कोई मुसलमान कहे तू पहले मिर्जे दे किरदार ते गल कर, ते उत्थे की करदे हो कालू सलामा? केड़ा तुहाडा मुसलमान है जेड़ा कहना तू पहले मुहम्मद दे किरदार ते गल कर? तुसी मुसलमान समझदे हो अपने आप नूं? इहनूं की कहोगे इस बंदे नूं? अगे उन्हें गालां कड्डियां ने, नंगियां गालां मातुल मोमिनीन नूं गालां कड्डदा रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गालां कड्डदा रहा नंगियां। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੀਚਕ ਜ਼ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਾ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗਰਮ ਤੋਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਭੈਣ ਚ ਲੋਲ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਕੇ एंड ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। इन्नी माँ का मसरूर सुनियो, देखो सुनियो। हो दस्तूर इन्नी माँ का या मसरूर, इन्नी माँ का या मसरूर। बिल्कुल सही। हाँ, इन्नी माँ का या मसरूर। फिर मेरा सवाल है, सारे भाई नीचे लिख कर पूछे, क्या ये खंजीरी कादियानियत है? सवाल लिखे सारे भाई, क्या ये खंजीरी कादियानियत है या यही खंजीरियत है? बताएं जी, खंजीर की क्या क्या क्वालिटीज होती है? इंसेस्ट होता है उसमें, इंसेस्ट। ये जिसको मानते हैं उस पर भौंकते हैं, ये अपने मालिकों को पढ़ते हैं। ये क्या खसलत है खंजीरी? या यही खंजीरियत है? दुम दबाकर बैठे रहे हो वहां पर, दुम दबाकर, और इस्लाम के साथ यूज होने दी लफ्ज। टैप टैप जरा भाई करते रहे यार, एक जड़ी चल रहा है ना। सुने जी आगे जरा। ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਹਰ ਅਮਜਦ ਉੱਠ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਯਾਰ? ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, Have some fear of Allah. You won't achieve anything doing all this. ये पिछली लाइफ पर बैठ के आपको याद नहीं आया जहां पर इस्लाम के बारे में माज़अल्लाह साथ खंजीर का लफ्ज जोड़ा गया? वहां पे आपकी शर्म क्या घास चरने गई हुई थी? खौफ खुदा मर गया था वहां पे, उधर क्यों नहीं जागा? अभी चेहरा दिखाया तो बुरा मान गए भाई, तकलीफ हो रही है, तकलीफ उठ रही है। ये तो चलेगा, अब हर मुसलमान इसको प्ले करेगा। ये तमाम मुसलमान दुनिया को आपका गंदा चीचक ज़दा चेहरा दुनिया को दिखाएंगे और हम असूल पे बात करेंगे। मैं भी आता हूं उस तरफ भी आता हूं, उस तरफ भी आता हूं। उस बंदे को पुश किया गया, वो गुस्से में आया, जो मर्जी हुआ, लेकिन जो उस बंदे ने ज्यादती की है, वो बहुत घिनौनी ज्यादती की है, वो बंदा जवाब देगा। और अगर वो समझता है वो असूल के ऊपर है, फ्री स्पीच है, तो जरूर इस पे बात हो, फैसला होना चाहिए कि खंजीरी असल है कौन, खंजीर की खसलत क्या होती है, असल खंजीरी होता कौन है, ये पता लगाना पड़ेगा। जी रणबीर भाई कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैंने कहा ब्रॉड शेयर की है मैंने, सबके साथ की, सब भाइयों ने की है। हाँ, एक दो भाई जरा नीचे लिखे जाके आए और सुने जरा, बल्कि आप सब फॉरवर्ड करें जरा, आए मैं सुनवाऊं कि जमात का चेहरा है क्या, ये असल में है क्या जमात रियल में। तेरी तू मेरे जानता नहीं है। पीर महमूद खलीफा प्यारा हर दम माने जवानी है बिशारत रब रहमानी। आला नस्ल दे कुत्तियां ने ਸਰਚਰ ਦੀ
ट्रुथ सर्चर तो कोई सवाल पूछता पिया आपने अल्लाह को कैसे पहचाना और जरा वैस है जो लंडे का मुजाहिद बनया हुआ है मेरे जितनी पढ़ाई है थोड़ी अच्छा एक मिनट मेरी गल सुन लो सैफी भाई ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਸਰਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਲੇ ਅਲੀਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ नहीं है जी पाकिस्तानी साहब एम आई लाइंग है जी ये मैं झूठ बोल रहा हूं ये मेरे मुंह से झूठ निकला है ये किस कुत्ते के मुंह से निकली ये बात आज राजा अताउल मनान साहब जो बैठे हुए थे वो इसको कहते हैं सैफी आपको डांट पड़ने वाली है मीठी मीठी डांट यहां खाओगे या व्हाट्सएप पे खा लोगे डांट सैफी आपको डांट पड़ने वाली है इस कुत्ते ने तमाम अहले बैत का नाम ले लेकर गुस्ताखी की है उम्मतुल मोमिनीन की गुस्ताखी की है इसने पैगंबरों की गुस्ताखी की है इस सैफी कुत्ते ने और ये जितनी जमातें अहमदिया की खास तौर पर जर्मन शेफर्ड कुत्ते इन सब ने गुस्ताखियां की और आज बैठकर दुनिया को अपनी क्लीन चिट दे रहे हो एक दूसरे लोगों को और कह रहे हो असल में वो देखे ना जब आया था खुतबा आया था तो उसके अंदर कहा गया था कि कुछ प्रवोक किया जाता है अहमदियों को कुछ अहमदियों को प्रवोक किया जाता है जिसकी वजह से वो गाली का जवाब गाली से दे देते हैं ये प्रवोक किया गया है ये अंबिया का नाम लेकर जो गालियां देती है इनको प्रवोक किया जाता है जी और राजा ताउल मनान साहब इतनी बड़ी फिल्म है कि अभी वो कि इस टिकटॉक के ऊपर सबसे ज्यादा गालियां अंबिया को अगर किसी ने दी हैं तो जमाते अहमदिया ने दी है आप भी दिल पे हाथ रख के बोले वहां पे कहते दिल पे हाथ रख के बोलता हूं कि मुसलमानों ने ज्यादा दी उधर क्या किया ये रख के बोल गए और अपने घर जाके क्या बोला कहते चूंकि उत्थे मैं गल जड़ी की मैं ठीक की मैं गलत गल नहीं की क्योंकि मैं मिर्जा साहब को भी नबी मनना ते मेरे मुताबिक मुसलमानों ने ज्यादा गल मिर्जा साहब कढ़िया ने ए देखो तकैया कर गया साहब तकैया करके चला गया अंदाजा करो हलफ मेरे सामने झूठा हलफ 2 नंबरी करके चला गया और आज बैठ के देखो क्या वाशगा बुलंदो बांग किस्म के दावे मैं तो बल्कि चाहूंगा सब भाई इजाजत दे और सब भाइयों से मुशावरत करके एक दफा असूल पर बात हो जाए पता चलना चाहिए एक दफा कि खंजीरियत होती क्या है पहले पैरामीटर्स डिफाइन किए जाए खंजीरियत के खतोखाल बयान किए जाए खंजीरियत की शक्ल निकाली जाए खंजीरियत का मॉडस ऑपरेंडा ही निकाला तो जाए खंजीरियत तहरीरी होती है जुबानी होती है अमली होती है किस तरह की होती है खंजीरियत को खोला जाए उसके बाद डिटेल के ऊपर इसके में गुफ्तगू की जाए मैं तो इस हक में हूं और ये देखें अगर किसी बेगैरत को यह लगता है कि ये जो बात करते हैं वो खलीफा को पता नहीं चलती तो ये सुन ले क्या वो भाईजान कह रहे हैं समझते हैं कि बंद माहौल में है इसकी इत्तला खलीफतुल मसीह को कहां पहुंचेगी और उसको कैसे पता चलेगा कि हम अंदर से क्या करते रहते हैं तो वो इस बात को नहीं समझती कि अल्लाह ताला खुद वक्त को इन बातों की खबरें देता चला जाता है तो वो हवा में पढ़ लेता है कभी आपने देखा नहीं कि हवा में नमी हो तो आपको पता है कि बादल बरसने वाले हैं कभी देखा नहीं कि हवा में खुश्की हो तो तबीयत बेचैन हो जाती है तो अल्लाह ताला ने मुझे भी वो सलीका बख्शा कि मैं हवा से पढ़ता हूँ आप लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो आपका पस मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा है वालेकुम सलाम ठीक है जी वो इनकी गंदी शक्लें देखकर बता देता था कि ये पीछे से क्या गद करके आए अगर कोई अहमदी जना करके आ रहा होता तो मिर्जा ताहिर को पता होता तो उसने जना किया लेकिन कहता कुछ नहीं था है जी नहीं जी नहीं क्यों वो आप करें उधर बात आप उधर बात करें फिर स्पीच करें मुझे जब अफजल साहब से करनी हो कि मैं अफजल साहब से कर लूंगा आपको इन्विटेशन देने वाले कौन होते भाई ना सद्दी ना बुलाई मैं मुंडे दी ताई तुसी कौन होंदे हो एक अहमदी मुझे बताएगा कि मुझे मुसलमान से कब बात करनी नहीं करनी ये मेरा प्रोरोगेटिव है मेरा राइट है भाई मैं जब चाहूंगा करूंगा मैं जब चाहूंगा जाऊंगा दिया ना नैरेटिव अब तकलीफ किस बात की हो रही है भुगतो अभी तो देखो तो सही होता ही क्या है ये तो आज शुरुआत है पिछले साल का हर साल का
एंड और आगाज चित्रोल से होता है, चित्रोल से। चित्रोल शुरू हो चुकी हुई है। ये फाउल खेला तुम लोगों ने, फाउल खेल गए हो, भुगतो अब, भुगतो अब। जी जी की हाल चाल सब दा ठीक ठाक। ये देखो एक बेगैरत, दोस्तों कान खोल के सुनो मुसलमानों, ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो और बताओ कि असल खंजीरियत होती है क्या है, खंजीरियत का खे कहां से निकला है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये एक बेगैरत कादियानी है, इसकी ब्रॉड पर एक बंदा चढ़ा और उस बंदे से तारुफ ले रहा है। ये गौर से सुने जरा, इसको डिकोड करें। तारुफ लेते हुए वो पूछ रहा है कि अपने नबी दा नाम दस दे ताकि सानू पता चल जाए तू गाल कटेगा कि नहीं। इसका क्या मतलब है, सोचो जरा, कौन से नबी का तारुफ है जो उसको बताएगा कि हां ये गाली देगा कि नहीं, और उसका तारुफ सुनिएगा वो क्या कहेगा आगे से। उस बेगैरत को सुनिएगा जरा, ये गौर से सुनिए जरा। कि मैं हवा से पढ़ता हूं, आप लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो आपका पस मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वालेकुम सलाम जी। आ रही है जी जी की हाल चाल सब दा ठीक ठाक हो। पाए ना अपने नबी का नाम दस दो ताकि सानू पता लग जाए। गाल शाल कटोगे तो पता लगेगा। अलहमदो आई एम फ्रॉम अहमदिया मुस्लिम नॉट गाली। हाँ जी, उन्हें क्या अलहमदो आई एम फ्रॉम अहमदिया मुस्लिम नॉट गाली की मतलब है दा? कौन से नबी का तारुफ कराया उसने और कौन से इनकार किया? लित्तर में भरी हो रेत, लंबे से लित्तर में, और तुम्हारी पिठियों पे लगाए हो लित्तर, तो तुम्हारे मुंह से ये जो शहद है ना ये ना गिरे। इंसान के बच्चों की तरह अपने अकीदे कबूल किया करो, दुनिया के सामने पखंड मत करो। और तुम लोगों ने ये जो चाल चलने की कोशिश की है, अब लित्तर सुबह शाम बच जाएंगे तुम्हें, सुबह शाम तुम्हें लित्तर बजेंगे। पहले भी तुम्हारी इन्हीं घटिया खंजीरी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में तुम लोगों के साथ देखो क्या हो रहा है। तुम्हारे अपने बंदे आके कह रहे हैं कि तुम लोगों की गुस्ताखियों की वजह से पाकिस्तान में आम अहमदी पे जुल्म होता है। बगैर तो पिछले साल लिख कर हम लगाते थे, उन पे रहम करो, अपनी कुत्ती जुबानें बंद करो। तुम लोगों को हया नहीं आई। आज बैठकर इस्लाम के साथ माज़अल्लाह खंजीर का लफ्ज सुन रहे हो और प्रमोट कर रहे हो और कह रहे हो बड़ा आजादी का काम किया है। खंजीरी अहमदियत असी विखा देने जनाब, खंजीरी कादियानियत विखा देना, तो चेक करो जरा। अल्लाह दा फजल भी नहीं आया। एक आएगा एक आएगा। ऐ सुने हो जी, उन्हें पहले दस देता है कि मैं आई एम अहमदी नॉट गाली। मैं आपको वाशगाफ अल्फाजों में बताता हूं और अगर गलत साबित हो जाओ तो नाम बदल दीजिएगा। उस बेगैरत कादियानी ने कहा है कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद का मानने वाला हूं, नबी करीम फुद्दू बनाते हो दुनिया को कि तुम बहुत पाक साफ हो। ये फिर सुन लो, मैं कहता हूं यार, एक टिल्ले ने, खुदा की कसम, आप सब जितने मुसलमान भाई बैठे हो ना, आप लोगों की सुस्ती और कमजोरी की वजह है कि इन कुत्तों को मुंह खोलने का मौका मिलता है। वाड़ के रख दो इनको। ये रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी चढ़ेगी, बल्कि इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे यार? इनका मुंह तोड़ो जहां पे जाते हैं यार। ये हमारी कमजोरी की वजह है
कि और इन जैसे लोगों को मौका मिल रहा है ये बकवास करने का, हम आपसी लड़ाइयों से नहीं निकल पा रहे। इनकी जुर्रत ही नहीं है, वाड़ कर दिया इनको पूरे टिकटॉक के ऊपर। 1 साल से इनको लित्रो लितरी किया हुआ था, अब इनका सांस निकला है, लेकिन फिर टेटवे पे हाथ रखेंगे तुम्हारे। यस, फिर सुने जी, रिकॉर्ड करें यार, इसको रिकॉर्ड करें, इसको अपलोड करो भाइयों, ये सुनो, ये तारुफ कैसे मांगा जाता है नबी का, ये सुनो जरा, इसको रिकॉर्ड करें। साफ दिखाई दे रहा हूं। वालेकुम सलाम जी। आ रही है जी जी, की हाल चाल सब दा ठीक ठाक हो? ਭਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ। Alhamdulillah, I am from Ahmadiyya Muslim and not Gali. Allah का फजल। भी नहीं आया, एक आएगा एक आएगा, कोई नबी नहीं आया। एक आएगा एक आएगा। दफावन जो यार, आप लोगों से बहस करना हराम है। कौन से नबी के मानने वाले थे? ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखा जो हमें दफा कर रहे हो ना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला था यार जी। ऐसी उन्होंने इनको तालीम दी है गालियों वाली। लानत है तुम सबके ऊपर, ओ बेशर्मो, और डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। इस हरकत के ऊपर नहीं, अपनी जिंदगियत पे डूब के मर जाओ कि इसी मुंह से दम भी भरते हो कि हाँ हम ही मोहब्बत करते हैं, इस चीज पे डूब के मर जाओ। कभी किसी ने कहा सांप को देख करके यार सप लानत तेरे ते, तू जहर रखिया है अपने मुंह दे में। सप का काम ही है भाई ने डंग मारना है, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। गाय ने पूछल चुकड़ी है तो गोया ही करना है। लता मंगेशकर की तरह गाड़ा नहीं सुनाना, कादियानियत ने मुंह खोलना तो गंद ही बकड़ा है, अंबिया ते भौंकना है, इस्लाम के खिलाफ ही बोलना है। इसलिए कसूर तानू ਅਸੀਂ ब्लेम नहीं करांगे, तो तुम्हारी तो गुड़ती में ही आया। इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी गुड़ती के अंदर है। दुख तब होता है जब तुम अपने मुंह से मीठा गिराते हो, शहद गिराते हो ना, और धोखा देते हो दुनिया को, और आगे से कहते हो वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहब्बत दिलबर मेरा, यही है फैसला, यही है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। ये वो बेगैरत लोग हैं जो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ज़ेनी इर्तका, ज़ेनी तरक्की माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा थी। लानत अल्लाह अल काज़िबीन। वो बेगैरतों कुफर में उसके मानने वाले हैं जिसने कहा था अगर मैं झूठा हूं तो इस्लाम ही झूठा है। अगर मेरी नबूवत साबित नहीं होती तो फिर किसी नबी की साबित नहीं होती। ये उसके मानने वाले हैं। और निकलेगा क्या मुंह से? जहर ही तो निकलेगा, और गंद ही तो निकलेगा। लेकिन फिर गंद ही निकालो ना, मीठा शहद देकर दुनिया को ये क्यों दिखाते हो? कभी सांप ने भी कहा कि मैं तुम लोगों को टॉफी दे रहा हूं? सांप जहर ही देता है भाई। यही तो सबसे बड़ा, तुम भेड़ की खाल में भेड़िए हो। यही तो सबसे बड़ा जिंदगियत का मसला है, जिंदगी का। लबादा इस्लाम को ओढ़ के तुम लोग धोखा दुनिया को दे रहे हो और कहते हो हम मोहब्बत करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर एक और टिकटॉक ते अहमियत नहीं हैगी, अहमियत कराची हैगी है। क्यों जी? टिकटॉक वाले की बेगैरत दे एक दुआएं करो, ये दुआएं तो थी जिसने तोड़ा था सर किब्र नमरूद का। करनी है, एक लड़की खरीदनी है। ए लो जी, ए दलाली प्रोग्राम। ये टिलफर्ड के पास मुकीम चंद अहमदी दलाली प्रोग्राम के अंदर शामिल। और मैं आपको तारुफ करवाते हैं बता दूं कि इस टाइम दलाली प्रोग्राम में कौन कौन शामिल है। इसके अंदर जवाद वाई सी साहब बैठे हैं, जरतश नाम का एक बेगैरत कुत्ता शातिम बैठा है, नासिर भट्ट लानत भट्ट तेरे ते भी, उसके साथ बैश बैठा हुआ है। ये लोग बैठकर दलाली प्रोग्राम चला रहे हैं। दोस्तों गौर से सुनिए,
ठीक है जी, गौर से सुनिएगा, आपको निदा नसर की बात याद आ जाएगी। उसने कहा था कसरे खिलाफत में कंजर खाना खुला होया है, रेड लाइट एरिया खुला होया है। और क्या खुला होया है ये जरा सुनिएगा, इन बेगैरतों की तालीम सुने। और ये कहते हैं जी हम नेशनल आमला के मेंबर हैं, कोई कहता है मैं सेक्रेटरी माल हूं, कोई कहता है मैं सेक्रेटरी तालीम हूं। ये है जी इनका, ये इनकी जमात है। 60 साल के बाबे ये चलने फिरने से आवाज आ रहे हैं, ये सोशल खा रहे हैं घर बैठ करके, ये हम जॉब नहीं कर सकते, हमारी तबीयत नहीं ठीक। और इनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ इस वीडियो में सुनने करनी है, एक लड़की खरीदनी है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक लड़की खरीदनी है। पठानी? हाँ, तो क्या हुआ, बेचते हैं वो, सरेआम बेचते हैं। इसे वजह तो उन्होंने बिजनेस चल रहा है, तुसी तो मैंने खरीद ली होगा इसमें, वो उनमें कोई बुरी बात कह रहा हूँ, कोई गाली दे रहा हूँ, वो बेचते हैं, मैंने खरीदनी है। हाँ, गैरतमंद कौम से अब मैंने खरीदनी है, मुझे इस्लाम पता चला है कि ये लड़कियां बेचते हैं। हाँ जी, अगर यहां पे अब कोई मुसलमान के हमें कादियानियत पता चली है कि वो लजनाएं बेचते हैं, तो क्या डूब के मरेगी कादियानियत यहां पे? ये जो आज मीठी मुंह से शहर टपकाते हुए राजा ताउल मनान साहब थे, ये कहेंगे ना कि तुम लोग गिर गए हो, कालू सलामा है तुम लोगों को, तुम लोग उस म्यार पे पूरा नहीं उतरे, मानदे अहमदियत हो तुम लोग, मदाहनत करते हो तुम लोग, यही कहेंगे ना। आज कभी अपने मुंह से अल्फाज निकाले कि ये वही सारे बेगैरत लोग हैं जो आज बैठकर कह रहे हैं मैंने मुसलमान लड़की खरीदनी है। आज अगर कोई लजना खरीदने की बात करे तो क्या कहोगे तुम लोग उसको? तुम यही कहोगे ना कि गिरे हुए लोग हैं, ये लोग गिरे हुए लोग हैं, यही बोलोगे ना उसको। और ये लोग बैठकर अंदाजा करो मुंह से शहद टपकाते हैं और बताते हैं कि बहुत जबरदस्त किस्म का निजाम है जी इनका। ये आज भी कुत्ते खुले घूम रहे हैं। है किसी ने पकड़ा इस निजाम के, किसी बंदे ने? मिर्जा ताहिर साहब क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लें जरा। मैं अगर कोई कह दे कि खलीफा साहब को पता ही नहीं चलता तो ये मिर्जा ताहिर साहब की बात सुन ले। मिर्जा ताहिर साहब तो उड़ती चिड़िया के पर गिर लेते हैं, खत का लफाफा देकर उन्वान जान लेते हैं। ये सुने, ताला खुद ये सुने जी, को कहां पहुंचेगी और उसको कैसे पता चलेगा कि हम अंदर से क्या करते रहते हैं। तो वो इस बात को नहीं समझती कि अल्लाह ताला खुद वक्त को इन बातों की खबरें देता चला जाता है, तो वो हवा में पढ़ लेता है। हाँ, कभी आपने देखा नहीं कि हवा में नमी हो तो आपको पता है कि बादल बरसने वाले हैं? कभी देखा नहीं कि हवा में खुश्की हो तो तबीयत बेचैन हो जाती है? तो अल्लाह ताला ने मुझे भी वो सलीका बख्शा कि मैं हवा से पढ़ता हूँ। आप लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो आपका पस मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वालेकुम सलाम। हाँ, ये जब फ्रेंच कट रख के तुम लोग जाते हो ना तो साफ नजर आ रहा होता है मिर्जा ताहिर को। वो मसलतन जो है तुम लोगों को छोड़ देता है कि कोई नहीं यार। ये फिर सुन ले जी, ये फिर सुन ले, कहीं रह ना जाए कहीं। ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा था सर किब्र नमरूद का। करनी है, एक लड़की खरीदनी है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक लड़की खरीदनी है। पठानी? हाँ, तो क्या हुआ, बेचते हैं वो, सरेआम बेचते हैं। इसे वजह तो उन्होंने बिजनेस चल रहा है, तुसी तो मैंने खरीद ली होगा इसमें, वो उनमें कोई बुरी बात कह रहा हूँ, कोई गाली दे रहा हूँ, वो बेचते हैं, मैंने खरीदनी है। हाँ, वो गैरतमंद कौम से अब मैंने खरीदनी है, मुझे इस्लाम पता चला है कि ये लड़कियां बेचते हैं। Buy one get one 50% ऑफ। ये मतलब एक खरीदो अगले दा रेट 50% डाउन। मेरी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए, प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पे देंदा ए। हाँ जी, ए मैदी दा मलंग वेखो कम जेड़े करदा है, प्यार ते मोहब्बत दा दरस पिया देंदा है। हाँ जी, मैदी दा मलंग ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਚ ਹੈ, ਮੈਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਬੇਗੈਰਤ, ਐਸਾ ਬੇਗੈਰਤ ਮਲੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬੈ ਕੇ ਮੈਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ। ये जरतिश के साथ ये दूसरा कौन है?
ये है जी, ये है वो उसका प्लान सुनने में, जो भी है उसका प्लान क्या है इस साल का, सुनने जरा। रब्बा जावा खुशियां मनावा मैं जिंदड़ी गोल घुमावा हो अखलाक दियां गल्लां। ये है जी उसका प्लान, वो कहना रब्बा जावा खुशियां मनावा। ये है जी, ये मुसव्विर है ना, मूसा की आईडी वाला। हाँ हाँ मुसव्विर बगैरत है इंसान। ये सारे जनाब आपके सामने। मैदी दे मलंग देखे आपने डंडा पीर साहब, कभी इस तरह के मलंग देखे, इतने कमर्शियल मलंग। एक बगैरत इसमें से, ये भी ऑडियो भी पूरी चलेगी, ये पूरी अभी तो समझ ले, आपको पता है अभी तो लैपटॉप नहीं खोला हुआ मैंने, उसके ऊपर तो पूरा लैपटॉप इनकी बगैरतियों से भरा हुआ है। उसमें बेशरम कहते हैं मां के ऊपर 50% ऑफ, और डूब के मर जाओ, जिन माओ ने तुम्हें पैदा किया है उन्हीं का हिया कर लो बेगर। तो मां के ऊपर 50% ऑफ, ये रेट लगा रहे हैं वहां बैठकर, लाइव टिकटॉक के ऊपर बैठकर माओ बहनों के रेट लगा रहे हैं हरामी। ये मैदी दे मलंग ने जी, ये ते चंदा भी टाइम नाल देंदे ने सारे दे सारे जी। जरा भाइयों करें जरा गुफ्तगू इसके ऊपर, मैं साथ एक और चीज आपको सुनाता हूं, जरा कमेंट करें इसके ऊपर। माजरत है जरा, मैं बहुत लंबा बोल गया हूं जी। जाओ लग साहब, बारी बारी शुरू करें जरा। जो फ्री है, डंडा पीर साहब आप बोले, मौसर भाई बोले, जाहिद जमील भाई दे कमेंट, उसके ऊपर आगे बात करें, मैं फिर चीज सुनाता हूं। साहब एज यूजुअल सो गए हैं। अच्छा डंडा पीर साहब चौक के रखे जरा, जल्दी जी। नहीं, खबासत का जो बेहतरीन नमूना आपने शो कराया है इनके आपके सामने है, ये तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बदबख्त और जलील और जो है ना बदतरीन कौम है ये, इनका इस्लाम से ठीक है, बल्कि अब यहाँ चल भी नहीं रहा, जो इनको आजादी मिली है, ये देखे ये नबी पाक पे भौंकना शुरू हो गए हैं। जो सुनाया गया है सब कुछ है, ये अल्लाह के वो रसूल हैं जिनकी सदाकत कुरान में बताई गई है, जिनके बारे में कुरान खड़ा है जिनके साथ, आप और आपसे पहले, ठीक है, ये उन पे भौंक रहे हैं। उनके खिलाफ जो है ना ये बात, इनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। यकीन माने जितने जो मुफ्ती इकराम और जो मौलवी साहब इनके बारे में बातें करते हैं ना, और जितना शदीद, वो बिल्कुल सही है, एक बात उनकी बिल्कुल सच्ची है, और इनको ऐसे ही काबू रखना चाहिए इस फितने को, इस फसाद को, जैसे पाकिस्तान ने रखा हुआ है। बल्कि मैं तो कहता हूँ उसमें मजीद सख्ती करनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये फितना आप देख रहे हैं, इनको हल्का सा मौका मिला है, बाहर जाके एक प्लेटफॉर्म मिला है टिकटॉक, और ये देखें कैसे जो है ना ये फितना अंगेजी कर रहे हैं। आपने ये चीज नोट की है? आप खुद देखें इस चीज को। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो छितर के काबिल हैं, इनसे कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सीधा छितर। डंडा पीर भाई असल चीज है कि आप इनकी लेवल देखे, इनकी बैठे होते ना जब लोगों के सामने, साड़ी ते तरबियत शुरू तो तफाल तो ऐसी सानू तो शुरू तो ये सिखाया गया कि जमाती जेड़ी अच्छी गल है वो जमात नाल मनसूब कर दो, जेड़ी बुरी गल है वो मेरे नाल मनसूब कर दो। मैं तो बिल्कुल मतलब सादा जिहा बंदा, ते साड़ी जमात ने कभी नहीं सिखाया ये गल। ते चेक करो कि अंदर क्या है इनका अंदर बहुत ही भाई आज तक गलीज और गंदे लोग हैं। मतलब ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि इनकी तालीम जो है, ठीक है, वो ही इतनी गलीज और गंदी है, तो असर सारा जो है ना, फैसला यही है, उधर से ही लिया गया ये सारा कुछ। नबियों पे गाली किसने दी आज तक किसी मुसलमान ने? वो मुसलमान हो और वो गाली दे रहा हो किसी नबी को? नहीं, आज तक नहीं। आपस में इख्तलाफ हो सके हैं, आपस में एक दूसरे को कुछ कह दिया है, लेकिन नबी को गाली किसने दी है? इनके लोग अपने ही क्या कहते हैं, जिसको ये झूठे को नबी मानते हैं, उसको एल पे चढ़ा रहे होते हैं। ये इसके यही बोल रहा था ना, और बाकी जो सच्चे नबी हैं उनको गालियां दे रहे हैं। मुसलमान हो और वो किसी नबी को गाली दे रहा हो, और गाली की इजाद ही यही है, गुस्ताखी की इजाद ही यही है। वो अल्फाज जरा दोबारा बोलें सिकर भाई, वो जो आपने बोला कि क्या तुम अपनी बच्चियों के इश्तिहार दो, कि पूछो जरा इनसे किस नबी के मानने वाले। फेवरेट टॉपिक है मेरा वाकई फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि ये इंसानियत और गंदगी की जो है क्या ना, जो आपकी जो इब्तिदा है वो यहां से होती है। नबीर भाई आप देखें, बच्चियों और शादीशुदा औरत को नंगी देखना, फिर जफ्फियां मारना, इश्तहार देना, ये इंसान
ये किस इंसानियत की ये बात करते हैं आके, बड़े आके उधर अब मुंह के ऊपर लेपा टोपी करके आके बैठ के जी हम तो क्या कहते हैं, हम तो असल अहमदियत ही यही है। अहमदी आप इतना अच्छा बोले तो आपको पता लगे, कहते आप ऐसे लगेगा कि आप अहमदी हैं। ये असल अहमदी है। तुम लोगों की माएँ बहनें तुम के कहते हैं वो महफूज नहीं है। कोई बूढ़ी औरत को तुम क्या कह रहे हो, उसकी क्या फाड़ दोगे? यानी कि गंदगी की इंतहा है ये पूरी की पूरी जमात। और किसने सिखाई है? ये जो सामने फोटो वाला नजर आ रहा है, ये और ये इसका जो बड़ा, ये इनको सिखा के गया। ये आके बताएंगे कि जी आके असल जो है ना, जो यही असल जो हंजीरियत है ना, वो ये कादियानियत है। ये जो असल हंजीरियत है यही वो कादियानियत है। बिल्कुल इनका कोई लेना देना नहीं है। शुरू दिन से जो है ना, शुरू दिन से वो सिकर भाई ने सारी बातें क्लियर कर दी है। भी एक इंसान, ठीक है, जब ये समझना शुरू कर देना कि भाई कलमे में जब तक मिर्जा ऐड नहीं होगा तब तक कलमा पूरा नहीं है। निजात जो है वो मिलनी नहीं जब तक, अब निजात जो है मिर्जा के अलावा नहीं है, ठीक है। अब ये कुरान की आयतें जो हैं ये मिर्जा पे उतरी हैं, तो इसके बाद फिर क्या रह जाएगा? फिर वो सारी बातें ठीक है, इनका कलमा अलग है, इनका सब कुछ अलग है। इससे ज्यादा ये क्या आपको प्रूफ दिया जाए कि आप कहाँ खड़े हैं? इनसे कुरान की कौन सी बात करेंगे आप? अब एक बंदा उठ के कहते हैं कि कुरान पाक की आयत मेरे पे नाजिल हुई है, आप क्या कर लोगे उस बंदे का? आप उस पे कुरान पाक से क्या बात करोगे? एक बंदा आके कहता है मुझसे कुरान पाक पे बात करो, ये जो आयत है ये मुझ पे नाजिल हुई है, बंदा उस बंदे से क्या बात करेगा? मैं बताता हूँ ये करेगा। जावा खुशियां मनावा, मैं जिंदड़ी गोल घुमावा हो। चिकन ला के फिर ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਭਿਓਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਚਮਚਾ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਮਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ है। डंडापीर भाई आप देखें, यानी कि आप उस बंदे से कुरान पाक से क्या बात करोगे जब कि ये आयत मेरे पे नाज़िल हुई है? उधर आप एक बंदा आपके घर आके कहता है कि ये घर मेरा है, क्या करोगे आप उसके साथ? क्या बात करोगे कि नहीं भाई तुम्हारे पर नहीं मुकेगा, नहीं मेरा। मैं बताता हूँ ये जी। नहीं दीदा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए, प्यार ते मोहब्बतां दे दरस पिया देंदा ए। जीवे नहीं दीदा मलंग फड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग, जीवे नहीं दीदा मलंग। इन्हीं जी गल है, तुसी समझ नहीं रहे मसला। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ। भाईजान तुसी समझ ही नहीं रहे, बस तुसी मलंगा पे फोकस करो, तो छोड़ो मेहंदी, मलंगा पे फोकस करो तुसी बस। आप ये देखें कितने मुसलमान हैं यार। डंडापीर भाई एक सेकंड जरा आप मॉडरेट भी करें ना भाई, कौन कौन ऊपर है, जरा सारे माइक खोले ना, कौन कौन मौजूद है? ठहरे जी, जरा सुता है तो रोटेट करो फिर हाँ खोलो जी माइक। सारे छुट्टे ने नहीं थे ने, लेकिन इधर उधर हुए थे ने। मैं खाना खा लूं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। साकी भाई की कॉल है, ये जरा करे ना कोई, जरा एक भाई को कर दें बेशक नीचे, मास्टर भाई को मैं चला जाता हूँ अगर किसी ने जाना है। मास्टर भाई को करें जरा। साकी भाई ये सोया हुआ है, जियाउल हक सोया हुआ मेरा ख्याल है। जियाउल हक कसम से मैं हैरान हो जाता हूँ। साकी भाई आओ ते दसो जरा आके दसो, ए मेहंदी दे मलंग जड़े ने वो आ गए ने। भाई शेरा अस्सलाम वालेकुम। साकी भाई मेरा ख्याल है आपके गेस्ट भी आए हुए हैं। मेहंदी मेहंदी दे मलंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है सारे भरावां दा? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिकर भाई किथे सी आने दिन? साकी भाई मैं इधर ही सी, वो चित्र तैयार कर रहे थे।
ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਮਸਰੂਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ 2-3 ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਵਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੀ, ਸਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮਲੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੁਛ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਕੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਿੱਕਰ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਝੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਆਈਡੀਓ, ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਮਲੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ, ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਐਸੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਲੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗਾਲੀ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਜਿੱਡੀਆਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਲਹਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ, ਮੁਲਹਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਲਹਦ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਗਾਲਾਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਹਦ ਕਾਫਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਨਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਜੈਲੀ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੈਰ ਮੁਸਤਕਿਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਬਰੂਜੀ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ, ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੈਲੀ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸੀਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਲੀ ਬਰੂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ? ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚਮੂਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾਨਤੀਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੁਗਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਏਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 14-15 ਦਿਹਾੜੇ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਪਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓ ਯਾਰ ਸਾਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈ ਗਾਇਓ ਪਰਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜੀਵੇ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਜੀਵੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਏ ओ इस जैली मैदी दे मलंग ਐ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਐ ओ ਸੁਣੋ जैली मैदी दे मलंगो ओ सुनो जैली जी, मैदी दे सुनो। मलंगो इमाम वक्त के अबरू के एक इशारे पर तुम्हारे ज़ौम के पुरजे उड़ा भी सकते हैं। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਧਮਕੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਗਾਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਪਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਨੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਫੋਕਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਉੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ एक गल सुनियो जरा नजर आएगी। इसकी गवाही जैसे अभी अफजल बराज साहब ने दी है, आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से बदकिस्मती से, और मैं बड़ी ऑनेस्टली खुदा को गवाह बनाकर आपसे ये बात कर रहा हूँ, जो मेरा पिछले 1 साल में यहाँ एक्सपीरियंस है, गैर अहमदी जो यहाँ ट्विटर पे तबलीग करने वाले हैं, गैर अहमदी उलमा हों, उनके डिबेटर्स हों, उनके साथ पैनलिस्ट हों, उनके नीचे कमेंट्स करने वाले हों, वो सैयदना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तकजीब, तज़हीक और तकफीर, ये उनका तुर्रा इम्तियाज है। यानी वो बरजस्ता ये कहते नजर आते हैं कि भाई हमने ये काम करना है, और उनके वो कहते हैं कि ये ईमान का हिस्सा है, और उसके लिए वो झूठ या झूठे इल्जामात या किरदार कुशी वो किसी चीज से दरेग नहीं करते। यहाँ तक कि जो बड़ी दिलादाराना बात है कि जो यानी जो काबिल एहतराम खवातीन है, खातून तो खातून होती है, हर खातून काबिल एहतराम है। हाँ जी यार सुने जी, सुने जरा गौर नाल। लेकिन वहां पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। इसलिए आप थोड़ा सा हमारी बात को ये समझें, हमें कुछ शौक नहीं है इस तरह की बात करने का। ओवरऑल ये थोड़ा सा मैंने पस मंजर बयान किया है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी ऑनेस्टी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि पूरे मजमूई तौर पर अल्लाह के फजल से अहमदी शराफत में, अपनी गुफ्तार में आपको नुमाया नजर आएंगे हर जगह। हाँ यार ये देखो यार कैसा मुनाफिक है, कितना मुनाफिक है बंदा यार। मैं कह रहा थल्ले बैठे ना साहब, नहीं इतना कॉन्फिडेंस ये आंदा किथों है? इतना रूहानी खुजाइन जिल्द 4 तो आंदा सर जी है साहब उत्ते आके जवाब दे थोड़ा इधर पढ़ो ते आ जांदे। नहीं डंडा पीर भाई नबी को कॉल कर दोगे? डंडा पीर भाई ठहर जाए एक सेकंड भाइयों, मेरा सवाल ये है कि इतना कॉन्फिडेंस आता किधर से? आप अंदाजा करो। हाँ, इन भाईजान ने कहा था, वो बंदा जो नाम लेकर पैगंबरों को गालियां देता है, उसको कहा गया था ये यंग ब्लड है, यंग ब्लड। ये तो यंग ब्लड है। आप लेवल चेक करो यार। उस्ताद से आता है ना सिकर भाई, आता ये कॉन्फिडेंस किधर से है? इसको किधर से आया था ये कॉन्फिडेंस? ओ इनमें यंग ब्लड है।
इनमें से किसी में दम नहीं है कि एक दूसरे को जो है ना गलत कह सकें, ये मैंने नोट कर लिया, किसी में दम नहीं है, किसी में नहीं। और ये एक छोटे से बंदे से जो है उसको नहीं गलत कह सकते। ये सुनिए, गलत कह दें नई न्यूज, ये सुनिए जरा, ये इंसाफ की लाइव पर और हो रहा है, और चेक करें जरा ये क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें सफिया साहबा ने कहा हुआ है कि मैं तो इन लोगों के राज लेने के लिए इनमें बैठी हूँ, वरना मैं तो कभी की अहमदियत छोड़ चुकी हूँ। और उसके बाद जमात ने उसे निकाला है जब उन्होंने जाके मुख्तलिफ ब्राडों पे भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी जमात के खिलाफ बहुत सारा मवाद इकट्ठा हुआ है उनके खिलाफ, तो फिर वो निकाली गई हैं। अब वो निकाली गई हैं तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, निजाम का और सफिया का मामला था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ जो खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन हैं उनको साथ मिला के तो कुछ हमारे जो लड़के हैं जोशीले उनके खिलाफ बातें की। हमारे जो लड़के हैं जोशीले, माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे सुनो। गाली देने वाले उनकी माँ बहनों को गालियां दी हैं उन आदमियों ने उसके पास ही बैठ के। तो अब वो लड़के जो हैं उन्होंने एक तस्वीर वहां लगा दी है, और वो तस्वीर लगा के तो उसके ऊपर नाम कोई नहीं लिखा हुआ, औरत लिखा हुआ है, तो बांदरी की तस्वीर लगाई हुई है। तो ये औरत इस तरह से है, ये औरत इस तरह से है, बांदरी बना दी, नाम नहीं लिखा, बांदरी बना दी, और ये औरत इस तरह से है। क्या खूबसूरत। अब आप नोट करें, यही बहन है जिन्होंने अगले दिन इनको इनके बच्चों की धमकियां दी कि तुम्हारे बच्चे के सामने भी ये सारी चीजें आएंगी और तुम्हारा बच्चा भी महफूज नहीं रहेगा। ये धमकियां दी हैं प्रॉपरली, अगले दिन उनके बेटे को धमकियां दी है। और आप अंदाजा करो कि आगे बैठे कौन है, खामोश होकर उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये महकूम नहीं है, ये दहशतगर्दी नहीं है, ये खंजीरी कादियानियत नहीं है। पूरी जमात मिलकर एक खातून के खिलाफ, ये खंजीरी कादियानियत नहीं है। ये इन्हीं माशाल्लाह महाशय जो है राजा साहब, इनसे कुछ अरसा पहले सवाल किया गया था इनके बारे में, और इन्होंने कहा था कि मैं मतलब आपके साथ इंगेज होना मतलब नहीं चाहता, मैं आपके मामले में बोलना ही नहीं चाहता। क्या क्या तो ये बंदा चला गया था। क्यों जी? आज बड़े ह्यूमन राइट्स याद आए ने, आज बड़ी फ्री स्पीच याद आई है। हमने तो जाकर कहा था, हमने तो जाकर फलाने को कहा था, उसको कहा था, तब भूल गए थे सारा कुछ। मैदी दे मलंगो, वो तो कुछ याद नहीं सी। आपको जोशीले लड़के देखने हैं डंडा पीर भाई? जी जी कड्डो देखो कैहो जे जोशीले निकले। साकी भाई भी बड़े जोशीले सन पहले। हाँ साकी भाई इससे ज्यादा जोशीले सन। मैं तारुफ करा दूं फिर एक बारी। जोशीले अपनी बारी, जोशीले लड़के, जोशीले मुंडे। लेकिन नहीं साकी भाई ओ जोशीले नहीं सन ओ वाले नहीं सन ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕੋਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੋਰਕ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ जोशीले ਤੇ जोशीले ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ जोशीलियत है। ਲਓ ਜੀ जोशीले ਮੁੰਡੇ सुनो जी। वाह जावा खुशियां मनावा, मैं जिंदड़ी गोल घुमावा हो। अखलाक ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ। ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ जोशीला ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ जोशीला ਮੁੰਡਾ ਐ ਨੇ ਜੀ। ਮਸਰੀ ਦੇ ਮਲੰਗ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮਲੰਗ ਨੇ, ਇਹ जोशीला ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, सैफी आपको डांट पड़ने वाली है, आपको डांट पड़नी है। कहा यहीं पे लेनी है डांट या व्हाट्सएप पे? तो उन्हें क्या व्हाट्सएप पे कर लेते हैं डांट जो है। ए जे जोशीले मुंडे ए ने असल अहमदियत दे कहते असास फ्यूचर ऑफ अहमदियत एसेट्स ने ए ने ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਲੌਂਡੇ ਜਾਲੀ ਮੈਦੀ ਦੇ ਮਲੰਗ। ਹਾਂ ਐਡ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਜੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। रबवा जावा खुशियां मनावा मैं जिंदड़ी गोल घुमावा हो। اخلاق ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੁੱਥ ਸੱਚਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ। ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੈਰਤ ਔਰਤ ਹੈ। ये तबलीग नफसानी ख्वाहिश है जिसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं। बेशक जब दिल से तकवा उठ जाए तो हर किस्म की रूहानी बीमारी पैदा हो जाती है। जमात अहमदिया बुढ़ी खुसरी, तू किस बाग की मूली है? तेरे तो बाल भी चिट्टे हो गए। 5-6 सालों बाद तूने पहुंच जाना ऊपर। नदर बगैरत बातें करते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इश्क की और मोहब्बत की, आपने दिलों को घेरों की आमाज का बना रखा है। मिर्जा साहब ने डायरेक्ट इतने गालियां दी है यार। अल्लाह वो तो अल्लाह ने भी गालियां दी हैं, अल्लाह ने भी गालियां दी हैं, तो मिर्जा साहब ने भी दी हैं गालियां। जब दिल से तकवा उठ जाए जीवे मेरी मलंग फाड़ ले गायो परिंदे जिन्हां दा चिट्टा रंग, जीवे मेरी मलंग। वो ऐसे कैसे कह सकता है कि मिर्जा साहब की वफात वैसी ही हुई है जैसे पाक रसूल की हुई है? क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? मिर्जा साहब नबी सीगे, कोई बंदा भी एक नबी नु गाल कटेगा और सारे नबियों नु गाल जाएगी। ए जे जड़ ए निकलिया जे बेगैरत, ए जो जड़ बूटा कादियान च लगा सी ना, ए जो फैसला यही है। जैली मैदी दे मलंगो गुस्ताखो शातमो जो शातमी तुहाड़े च बड़ी दी है। ए जे जनाब असल जैली मैदी दे मलंगो, अंदाजा करो ये किधर से गंद चला है और कहां पर आकर इस गंद ने अपने पौधे ने फल दिया है, और ऐसा फल है ये कादियान से चला है सिकर भाई, यूरोप च आके फल दे रहा हूं कादियान ते चले भाई। ये अपनी निजी महफिलों में इससे ज्यादा जो है ना बकवास करते होंगे, मैं शर्त लगा के कहता हूं। मैं कहता हूं डंडा पीर भाई, अच्छा आपको बात है तो जाहिल, आपको पता है पढ़े लिखे तो है नहीं। ये जब बैठे होते हैं ना, इनको लगता है कि जब हम 4-5 बंदे बैठे हैं, इनको इनकी औकात का पता है, उनको पता है मैं सुनता भी कोई नहीं। उनको वो फील ही नहीं करते कि वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए। मतलब आप नोट करो कि उनको अगर चले ये तो मैं कह रहा हूं ना, लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ कर जब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, डंडा पीर भाई आप नोट करें यार, इनके जहन क्या है, इनके अंदर क्या किस किस्म की गुड़ती इनको मिली हुई है। वो बड़ी अच्छी लाइन बोली है, लड़की थी भेड़ियां ये भेड़ की खाल में छुपे हुए। इनका जितना दीन इस्लाम को इन्होंने नुकसान पहुंचाया ना, यकीन माने और किसी ने नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि ये ज़ंदीक है, ये ज़दका करते हैं। वो एक छोकरा है, वो घूम रहा है, कभी मेरे हत्थे तो नहीं चढ़ा, ठीक है, कभी चलो अभी तक चढ़ गया। अगर वो क्या नाम है उसका, वो जो कमीज उतार के फोटो एनिमेटेड बनाई हुई है उसने, क्या नाम है उस छोकरे का? नहीं चाहिए अहद नाम का। हाँ वो नहीं, अब आईडी क्या रखी हुई उसने कि मैं भी इस्लाम में था, अब मैं आ गया हूँ आपका ये ताहिर नाम की आईडी, वो जड़ा मुंडा जड़ा आजकल फरगा रही। आप यकीन करें ना, ऐसे ये जो एचएस आया था, वो एचएस नाम का आया था एक दौर, इनका डे वन से मैं पता है कि ये क्या फनकारी होती है, ठीक है। और हमें डंडा पीर भाई अल्लाह से खौफ आता है, वरना आप मुझे एक बात बताएं यार, अभी किसी अपने बंदा फोन नहीं करा सकता किसी को, भाईजान मैं हमके छड़ने लगा, लानत पान लगा जी यार, हम काम किसका कर रहे हैं, अल्लाह का, या हमें ड्रामेबाजियां करनी है बैठ के? फनकारी की तरफ ना जाना। आप सबको पता कि फनकारी लगाने में पीएचडी की हुई है हमने, वही देखे ना आप। वो लौंडा जो है, मैं इन्हीं रवैयों की वजह से मैं किसी दिन वो बड़ा आजकल और हुआ है, और उसको चुकने में बड़ा कई लोगों का हाथ है। किस दिन चढ़ गया हत्थे ते पुत्र, तू सुनते रहा ही बारों बह के, किस दिन करना हिम्मत आ जा, किस दिन बैठ, तेरे से मैं पूछूं तू केड़े रवैयों से गया, और तू असूल बयान कर, सामने असूल रख बेटे।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅੰਮਾ ਅੱਬਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦस्त। वो नीचे बैठा मनु आके डेफिनेटली ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਈਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਚਮੋਣਾ में ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕੋ। ਓਏ ਯਾਰ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲੜ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਚਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ इसका जवाब बताओ, इसका जवाब मुझे चाहिए। जावा खुशियां मनावा मैं जिंदगी गोल घुमावा। अखलाक ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ। हाँ ਇਹਦਾ जवाब देना सब तो पहले सैफी आपके लिए डांट तैयार है यहाँ खाओगे कि बाहर जाके? ਇਹਦਾ जवाब दियो। ये लो लॉलीपॉप एक लॉलीपॉप ले लो ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ। ਸੈਫੀ ਦਾ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਲੀਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ? चलो ਅਸੀਂ जितना मर्जी नहीं पूछते लेकिन सर बात पता क्या है पता इब्ने आदम भाई ये करे ये ना करे लेकिन यार ड्रामेबाजी ना करो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो। झूठ ही तो है इनका सारा। तुम लोग इतनी मुनाफकत करो और मैं हक्का बक्का और हैरान हूं उस मुसलमान के ऊपर कि अल्लाह के बंदे तेरी जात पे बात हुई है, तेरी जात को किसी ने अटैक किया है, तू जाकर इस्लाम के साथ ये अल्फाज लगा रहा है यार। और किन के साथ बैठ के? जो अजली दुश्मन है इस्लाम के, जो भेड़िए उसको भी बुलाओ, शेयर करो उसको भी। नहीं डंडा पीर भाई जुल्म है, किया उसको शेयर मेरे साथ नहीं हुई। ये बहुत शदीद जुल्म है मेरा यार, हमारे इतराज यही है। इब्ने आदम भाई क्या मेरे साथ नहीं किया मुसलमान को अपने भाइयों ने? और बिल्कुल क्या हम लोग ने जाके मर्ज़इयों के सर पे अपना कंधा रखा है? मैं कहता हूं यार सवाल ही पैदा नहीं, किसी मर्ज़ई की जुर्रत है मेरे सामने को बात कर जाए? ये कौन सा हुआ यार? मुझे सिकर भाई मुझे बात बताएं, दो भाइयों की लड़ाई हो और वो भाई बाद में अपने बाप को गाली देना शुरू कर देगा। दो भाइयों की लड़ाई होती है, दो भाइयों की लड़ाई हो, वो भाई अपने एक बाप को गाली देगा। सर अब वो जो बंदा है तुम्हारे साथ किसी ने कोई बात की है, तुम जाके किधर जाके और इस्लाम के खिलाफ, जिसको ये सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के, सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के, तुम उनके कंधों पे सर रख के रो रहे हो। नहीं मैं कहता हूं वैसे हर शर में भी खैर की खबर होती है और अच्छा बल्कि मैं कहूंगा कर दिया, हमारा ध्यान डलवा दिया, इस तरफ हमारा ध्यान दोबारा से डलवा दिया है। और आपको पता है ये साल का जो मौका होता है ना एंड पर और शुरू का, इस पे वैसे जमात की छितरोल का मौका होता है, ये एनिवर्सरी होती है छितरोल की, ये इनके थूक की एनिवर्सरी होती है, ये इनके शिर्क की एनिवर्सरी होती है। जी जी बोले। आज एक और बंदा भी सुन रहा है बैठकर, पिछले साल आगाज उनसे किया था हमने बेचारों से ना, वो भी सुन रहे हैं बेचारे बैठकर, आज वो भी उधर बैठे हुए थे कुरान से ना फैसला लेने इसका। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा भाईजान सपरा भाई, बाकी सारे जितने भाई है ना, मैं आपको बात बताऊं मेरे भाई, हमारे हैं मसाइल वो चलते रहेंगे, लेकिन जिधर इस तरह की ड्रामेबाजी हो ना, ठीक है। अच्छा वो कहता है जी आज उनकी ब्रॉड पर दुरूदो सलाम पढ़ा गया और आज हमारी ब्रॉड पर देख लानतुल्लाह पढ़ा गया, कैसा है फिर? हंजीरियत है ये, कादियानी हंजीरियत है ये, यहाँ पे साबित हुआ है। हमारे जो मसाइल है ना वो फिकी मसाइल है, हमारे ये मसाइल नहीं है। इसका एक बेहतरीन डेमो ये है, ये कितने हैं 2 4 6 8 सीटें है ना, 8 डिफरेंट फिरके के बंदे यहाँ बुलाएं आप, ठीक है। उसके बाद एक मिर्जाई बुलाएं, आप देखें वो सब अपना भूल जाएंगे।
क्यों डंडा पीर भाई, क्योंकि क्या वो वजह सारे क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी के वसल्लम। गुस्ताख है सिकर भाई, मसला ही यही है। ये जो ये गुस्ताख, ये इनका ये एक फिरका नहीं है सिकर भाई, ये एक अलग उम्मत है। आप बस क्यों नहीं यही तो समझ बात आती? है। मैं इनको फिरकों में हाँ। काउंट ही नहीं करता यार कोई लेना देना नहीं है। ये फिर इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ यार ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ साकी ਹੈ? नहीं ना ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਬਣਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਉਹ ਕੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਖੈਰ change ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਸ਼ਾਦਾ ਚੂਹਾ ਹੈ ਐ ਮਲੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਸੀ ਮਲੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਛੱਡੋ 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 और नहीं स्पेशल चाइल्ड। हाँ तो बस छोड़। ओह अच्छा, वो वाला जी, वो जो अपने हनीमून डिस्कस कर रहा था उसकी, हाँ यार वो सब कुछ ना मेरे लैपटॉप के अंदर है। नहीं आगाज हो गया माशाल्लाह, और अच्छी बात है, इन्होंने ध्यान डलवा दिया है अपनी मीठी मीठी मिन्नी मिन्नी मुनाफकत करके, इन्होंने ध्यान डलवा दिया है। ये तो अब रेगुलर सेशन छितर हाथ में होगा। जब लैपटॉप खुला उसमें तो इनका बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जबरा भाई वो तो बगैरत है, वो लोगों को बता रहा होता है बहूगा आ गई घर, वही है। हाँ, और खास तौर के ऊपर डिक्टेटर जो फतवे दिए ना बशीरुद्दीन महमूद के ऊपर तुम्हारी जमात के अपने लोगों ने, और जो इल्जामात लगाए हैं, कभी उन पे भी जाके ना मुंह धर। हाँ जी, वहां भी मुंह धर जाके, उधर भी मुंह दे। बहरहाल जी गल उत्थे दी उत्थे रह गई कि 1 सेकंड जरा यार वो तो अल्लाह ने भी गालियां दी हैं, अल्लाह ने भी गालियां दी हैं, तो मिर्जा साहब ने भी दी हैं गालियां। जब दिल से तकवा उठ जाए, जीवे मेरी मलंग फाड़ ले गायो परिंदे दिलां दा चिट्टा रंग, जीवे मेरी मलंग। हाँ वो ऐसे कैसे कह सकता है कि मिर्जा साहब की वफात वैसी हुई है जैसे पाक रसूल की हुई है? क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? मिर्जा साहब नबी सीगे, कोई बंदा भी एक नबी नु गाल कटेगा, सारे नबियों नु गाल जाएगी। तेरी ऐसी दी तैसिया बेगैरता झूठिया। माफी याद है डड्डा पीर भाई, पिछले साल जब लित्तर परेड इसकी की थी, माफी मांग के गया था, तौबा करके गया था, नाल सिफारशी लेके आया सी कि हुण छड़ दे यार, छड़ दे, उन्हें देखना उन्हें तौबा, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ। बगैर तो बकवास करोगे, मीठी मुनाफकतें दिखाओगे। एक बंदा साथ असल मुनाफिक। यार मुझे एक बात बताए, हमारा बहुत भी, हम फर्ज करें जी हम बड़ा मौके का चौका मार रहे हो डंडा पीर भाई, कोई कादियानी को जमात के खिलाफ इनकी बोल रहा हो, हम उसको सपोर्ट कर रहे हो। यार अगर अल्लाह माफ करे वो अपने मुंह से अल्फाज ये निकाले, इस्लाम के साथ वो अल्फाज करे, यार हम उसको क्या कहेंगे? तू बोलता रहे, और एक दफा नहीं रिपीटेडली निकाले। कभी नहीं। ये कौन लोग हैं यार? असल हंजीरियत है ये, असल हंजीरियत है। नहीं इस गंद के ऊपर कौन इनकी कौन बात, ये कब बात करेंगे? आए ना जी, ये खंजीरियत आपको दिखाए ना इधर, ये भी देखे ना असली खंजीरियत होती क्या है। जिस थाली में खाओ उसी में जो है ना, इधर आए आपको दिखाए। सिकर भाई इन्होंने इसे कहते हैं औरतों की बात करते हैं, ये औरतों की बात करते हैं। इन्होंने उस औरत के साथ वो की है, वो औरत रो रो के 2 बजे रात को, 3 बजे रात को मुझको गालियां निकाली जा रही है मेरी, वो चीजें डिस्कस की जा रही है कि बंदा परेशान होता है। ये असल हंजीरियत है। सीखी कहां से है? सीखी वहां से है कि जब भी मुखालिफ के साथ बात करो तो मुखालिफ की औरत को गाली देनी है, गाली दो। सीखी वहां, मुखालिफ की औरतों को कुतियां बोलो, ये वहां से कुतियों से बढ़ के बोलो, यानी उधर भी ना रुको। तौबा इस्तगफार। अस्सलाम वालेकुम जिक्र भाई साहब, भाई क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा
सबसे जो मेन चीज है ना, जो सीकर भाई हमने शो करना है कि वो ये है कि हमने इनके अखलाक दिखाने हैं दुनिया को। बिल्कुल। ये सबसे अच्छे अखलाक वाले के मुंह से कि ये क्या निकल रहा है यार। और अभी तो जाहिद ये भाई, कुछ भी नहीं है जो माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट जो इसमें माशाल्लाह है, आपने जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया है इनका, ठीक है जाहिद भाई, वो वेला आ गया कटड़ तक, कटो जरा एक बारी। और सारे मुसलमान भाई जो है इनकी लाइवें लगाकर एक दफा इनका गंदा चेहरा दिखाए, छड़ो यार आपस में, छड़ो लड़ाइयां कर ली ना, बिल्कुल 2 दिन कर ली, लड़ लिया आपस में, कर ली, सारे गिले शिकवे हो गए, होते हैं, सब कुछ हो गया। अब ठोको इनकी मंजी पकड़ के, इन बेशर्मों की। ये सामने बैठकर मुनाफकत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ठोको इनकी मंजी पकड़ के, इधर सारी गैरतें इकट्ठी करो यार। अभी मुझे ये नहीं सीकर भाई समझ आ रही, और राजा तनानमा साहब क्या कहते हैं, सैफी बेटा इधर तेरी डांट करूं या घर पे जाके? नहीं, देखो ना, देखो गलत गल, और ने क्या राजा तो हमने, सैफी आपकी डांट तैयार है, इधर खाएंगे या व्हाट्सएप पे? हाँ देखो तुसी गलत अंदाजा करे। असल बात सीकर भाई, जिससे मोहब्बत होती है दुख उसका ही होता है। ये हमारे भाइयों को समझ नहीं आती, ये जो बने हुए ना जी हम इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही इनको कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गंद है जिसके अंदर आप जा रहे हो। और आपस की सब जंगें बंद करो, इनको नंगा करो मरसइयों को, जिन्होंने लानतियों को। नहीं, ये रिकॉर्डिंग सारी जाहिद भाई अवेलेबल कराओ सारे भाइयों नु, ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर इनकी स्क्रीनशॉट के साथ, वो जैसे लास्ट टाइम की थी ਤੁਹਾਡੇ एक भरा ने वो भी उड़ाती फड़ के, और खैर भाई ये मेरे को शुक्र है कि सेव कर ली थी वो वीडियो स्क्रीनशॉट के साथ, इनकी बेगैरतियों के साथ, वो ऑडियोज के साथ, ये जो आज ऑडियोज बनी है सारी की सारी उस पर अपलोड करें, लाइव लगाकर, जिधर ये बोले, मैं कहता हूं आइडियो से दूसरी से जाके प्ले करो इनकी बेगैरती। फ्री स्पीच है ना जी, फ्री स्पीच है। बल्कि मैं तो कहता हूं, मैं मुसलमानों से मैं कहता हूं मत करो बाइकआउट, एक दफा बिठाओ सामने। ये जितने फ्री स्पीच के चैंपियन हैं, ये जितने भी लोग हैं जो असूल पे बात करते हैं, खुला चैलेंज देते हैं, खुला चैलेंज, मैदान हाजिर है, बड़े से बड़ा साहूकार ला के सामने बिठा लो, आ जाओ, आओ बात करें फ्री स्पीच के ऊपर। बुलाओ, मैं कहता हूं न्यूट्रल जज बुलाओ बीच में बिठाकर, फ्री स्पीच पे गुफ्तगू करवा लेते। पता चले कि ये असूल के ऊपर फ्री स्पीच है या जात के ऊपर फ्री स्पीच है, ये दुख दर्द है कहां का। ये मेहदी के मलंग जो है, जी मेहदी के मलंगों की जो, जी बोले इनकी फ्री स्पीच अंबिया पे खत्म होती है। नहीं, मैं कहता हूं अपना इब्ने आदम भाई, बात इतनी है कि दुनिया को जो मुनाफिक चेहरा अपना दिखा रहे हैं, इन्होंने मुझे एक बात बताई, यही बेगैरत सैफी या जितनी ये लॉट आज जर्मन शेफर्ड्स की बैठी हुई है यार, इसके अंदर इस कदर उन्होंने, अब वो जो अली अकबर की नई रिकॉर्डिंग मैंने तो अभी सुनी है लाइव, अभी प्ले करते हुए, मुझे तो जाहिद भाई ने भिजवाई है, मैं तो अल्लाह की कसम मैंने मुझे म्यूट करना पड़ गया अपना ना, अब जो स्पीकर था म्यूट करना पड़ गया, मैंने फिर फॉरवर्ड ही की आगे, मैंने नहीं की, मेरे यकीन करे हक्का बक्का ही रह गया, मैंने अल्लाह की कसम अभी सुनी है, वो इस कदर बकवास है, इस कदर बकवास। अच्छा सीकर भाई, ये फ्री स्पीच की डेफिनेशन जो है ना मरज़इयों की, वो भी चेक कर लेना, वो है क्या, कभी सानू माइक देते से जो पहुंच जाइए। रिकॉर्डर भाई, नबी पे गाली, ये फ्री स्पीच है इनकी। हाँ, ये फ्री स्पीच है। नहीं, मैं कहता हूँ रिकॉर्डर भाई रखे तो सही ना भाई, अगर एक फ्री स्पीच ब्रॉड पर एक मुसलमान को नीचे उतारा जाता है कज़ाब और दज्जाल कहने पे, क्या ये फ्री स्पीच नहीं है, वो फ्री स्पीच है, तो बैठ एक दफा मैं कहता हूं, बल्कि एक ते अपने लोगों के ज़हन भी ना वो एक हद तो अगे जाते नहीं, एक दफा लगाओ हम महफिल यार। मैं कहता हूं ये आए देखें, वो जो फ्री स्पीच है ना, वो बुलाए, हिम्मत करे। नहीं, मैं कहता हूं जी महफिल लगनी चाहिए, न्यूट्रल बंदों के साथ बैठे, न्यूट्रल, जिसके लिए सभी न्यूट्रल हो, और हो बात फ्री स्पीच के ऊपर, लग पता जाए एक दफा, लग पता जाएगा फ्री स्पीच क्या और फ्री स्पीच नहीं है भाई। वो न्यूट्रल ही कहते हैं ना अपने आप को कि मैं न्यूट्रल हूं,
सुनने हमें हमें सुनाने दे ये वाली क्या भाई कहते मैं हैं नमाज पढ़ के आया। ठीक हो जाता पीर भाई। नहीं देखे बात ये है, वो हर्ट है, वो जो भी है। अगर बात होती मदावा की, कि मदावा करना होता जी कोई बंदा हर्ट है, यार आप यकीन करो मुसलमान भाई का मदावा करना भी इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो अल्फाज बोले हैं इन बदबख्तों के साथ बैठकर, इसकी ये होगी, क्रॉस होगी, ये लाइन क्रॉस कर दी है। इनके साथ बैठकर ये कह दिया गया कि इसकी जूती के बराबर नहीं है। ना 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 ना, ये नहीं। उसी का जब 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 आपके साथ हुआ है, जब ये वाला काम इधर सब कुछ रगड़ा गया है, किसकी जाके उधर जाके कोई खुदा ना खास्ता इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया? मरज़ई की जुर्रत है, कोई मरज़ई और की जुर्रत है कि हमने अपने इस्लाम को कुछ बोला था। यानी कि मैं हैरान होता हूं। और कहा कि जब ज़हन में आता है तो उसको उसकी तौबा करती है। ये रिपीटेडली बकवास की जा रही। और तुम इधर बैठ के वो जो कर रहे हो, जो मुंह से कर रहे हो, या तुमको पता नहीं लग रहा, या तुम ज़हनी तौर पे क्या कहते हैं दिमाग काम करना बंद हो गया तुम्हारा। फ्री स्पीच कर रहा है ना, फ्री स्पीच पे ये भी सुन, ये बता कि नबी को गाली देना फ्री स्पीच है? नहीं ठहर जाए। देखे एक बात इतनी, अगर किसी की आर्म ट्विस्टिंग करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी के ईमान के फैसले करना, चैलेंज करना किसी की ईमानियात को, ठीक है, ईमान को चैलेंज करना, अगर इसका नाम रखा गया है, अल्लाह माफ करे इसको, खंजीरी, और आगे अल्लाह माफ करे इस्लाम का नाम रखा गया, तो मैं तो पूछूंगा असूल पे सवाल, अगर ये सारे हकायक मैं पेश कर दूं तो क्या ये कहा जाएगा कि खंजीरी का दियानियत है? ये नहीं कहेगा। ये है ना फिर बात। यही तो मैं चाह रहा हूं एक दफा, अगर मैं उससे बढ़कर 3 गुना ज्यादा सबूत पेश कर दूं तो क्या भाईजान ये कहेंगे ये खंजीरी का दियानियत है? अगर तो वाकई ये सच्चा है ना तो फिर ये कहेगा, और अगर ये सच्चा नहीं है फ्री, और अगर ये सच्चा नहीं है फ्री, ये खुला चैलेंज है फ्री स्पीच को, खुली ऑफर है कि तेरे सामने ये चीजें रखते हैं, उससे ज्यादा तुझको बताते हैं। मैं कहता हूं मुसलमान हमारे जज्बाती हो जाते हैं। मैं कहता हूं करो, एंगेज करो, असूल पे बात करो भाई, असूल सामने रखा जाए। सिकर भाई जज्बाती भी ठीक होते हैं, जो जज्बाती होते हैं ना, वो जो अल्फाज बात वही आ जाती है ना, कि अब किसी में ये बात ना हो, ठीक है, इतनी औकात ना हो कि वो इस चीज को हैंडल कर सके, वो कहता भाई ना खेलना ते ना खेडन ए गल है ना, अपने प्यो नु गाला कढ़ना शुरू कर देगा। असल बात ये है डिकोडर भाई, अपने भरा ना लड़ाई करके अपने प्यो नु गाला कढ़ेगा। हाँ, ये ना मतलब अब खुदा अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला की अता करता है, कि भाई उसको मान लो, इसमें क्या है, कम हो जाएगी तुम्हारी शान। अगर तुम्हें किसी में औकात नहीं है बात करने की, तो उसका मतलब ये तो नहीं किसी को जनाब आप रगड़ा दे दो बिला वजह का। अपनी हरकतें क्या हैं। और हाँ, ये जो फ्री स्पीच है, ये फ्री स्पीच सिर्फ सारे इस्लाम की तरफ है, उनकी तरफ फ्री स्पीच नहीं है कोई, वो नहीं हम बता सकते। हालांकि यहाँ बिठा के एक लफ्ज ब लफ्ज हाईलाइट करके दिखाया, ये देखो कुफर, ये देखो दजल, ये देखो फ्रॉड, ये देखो झूठ, ये देखो अफजलियत, ये देखो। डिकोडर भाई अभी जो कुछ प्ले किया ना, मेरे कान नहीं सुन सक रहे, मुझे बार बार उसको यार एक बात बताए, मैं आप लोगों से भाइयों से एक सवाल पूछता हूं, अगर एक भाई के ऊपर, मुसलमान के ऊपर ये कहा जाए कि तू कादियानी है, ठीक है, तू सहूलतकार है, तू कादियानी है, तू ये मतलब जो भी उसके ईमान का चैलेंज हो गया ना जी, सहूलतकार भी हो गया, वो अल्लाह माफ करे, कादियानियत को वही कर रहा ना, सपोर्ट कर रहा होगा छुप के, ये तो उसके समझ लें कि काफिर कहने के मुतरादिफ हो गया ना। बिल्कुल। एक ये बंदा है, एक वो बदबख्त है कि जिसको जो अंबिया के ऊपर शराब का इल्जाम लगा दे। दोनों में से बड़ा बदबख्त कौन है?
किसी वो मुसलमान शराबी को जिसने कादियानी शराब का कहने इल्जाम वाला लगाया, या अंबिया पे शराब का इल्जाम लगाने वाला? जिसने अंबिया पे शराब का इल्जाम लगाया, कोई शक ही नहीं। हाँ, तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उसकी इस हरकत को खंजीरियत कहा जाएगा? ये बनता है बिल्कुल, बोले ना फ्री स्पीच। अच्छा एक ऑडियो भी साथ सुन लेना थोड़ी सी। तेरी मरी मां की कसम ही जे तू अल्लाह नु बह के घर ना सुनाए तेनू तेरी मरी मां की कसम जी आके इत्ते आके सुनाए ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ओ भाई साडी तबलीग बढ़ गई तू अपनी तबलीग दी दस ओ भाई तू अपनी तबलीग दी दस तू अपनी तबलीग दी दस तू अपनी तबलीग दी दस मनु ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ओ सारे मेरी गल सुनो नजीर बिलाल साहब हाँ जी, ये है तबलीग, समझ गए सिकर भाई? माशाल्लाह, इसको बोला जा रहा है कि इनका अखलाक बहुत अच्छा है। ये माशाल्लाह। अखलाक है जी। वो इनका मेहदी दे इखलाक मलंग तो ने, भरा पड़ा जानी है। मेहदी दे मलंग। अब एक स्पेशल किस्म की ना, मैं कहता हूँ वो एक, चलो भाइयों के साथ करते हैं जरा प्लान करके, इनके ऊपर अब सेशन होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए इनकी मुनाफकत। एक दफा जैसे पिछली बार इनको दुनिया को बताया था ना कि मैं तो सोच भी नहीं सकता अहमदी, आजकल फिर इनको लगा कि हमें शायद स्पेस मिल जाएगी। ना सुने ना, ऐ नहीं होने लगा। अहमदी गालीबाज थे, कादियानी गालीबाज थे, गालीबाज हैं, गालीबाज रहेंगे। और मैं तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो भाई मेरे सुन रहे हैं, खुदारा छोड़ दें, बाकी सारी अपनी एनर्जियां इधर लगाएं, छोड़ दें। सिकर भाई एक और ऑफर दे इनको, वो जो कहा था ना कि एक ब्रॉड लगाओ, अकेले बैठो, बाकी साथ पे ये आके बताएं कि ये जो फ्री स्पीच पे जो बकवासियत की है ये करो, इसको जस्टिफाई। नहीं, मैं तो एक मशवरा करके देखे, मशवरा करके, क्योंकि भाईजान अब मैं अकेले नहीं, अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं जंगल के अंदर मैं अकेला नहीं बैठा हुआ। मैं मशवरा करके मैं तो कहूंगा कि भाईजान लेट्स फेस इट, आप मुझे नॉमिनेट कर दो भाई, किसी दिन मुझे नॉमिनेट कर दो, आओ बैठे एक दफा करो, सामने बिठाओ तो सही ना। इनमें से कोई एक माइका लाल उठे जो आकर ये चीज को मेरे सामने बैठ के डिफेंड तो कर दे।